Okay, let us now learn those rational numbers which have non-terminating decimal expansions. We will learn about those rational numbers which have non-terminating decimal expansions. For example, the very simple example is 1 upon 3. Now 1 upon 3 is a rational number. It's because it is expressed in the form of p upon q, you can see, and the numerator and denominator, that is p and q, both are integers, as well as q is a non-zero number. So it's a rational number, it's confirmed. Now it's a rational number, it's confirmed to us. Now if I want to convert this into decimal form, what should I do? I will divide this 1 by this 3. How will I divide? This is 1 and this is 3. So I can see it's a small number. I will put a 0 and then a decimal. Then we will have a 0 here. Then 3 3s are 9 minus, and you will get 1. Okay. After this, I have 1 as the remainder. Now is the remainder 0? No. Is this division completed? No. So what I will do? I will put a 0 here. Okay, I will put a 0 here. So this will be 3, again 3 times and 9. So minus, you will again get 1. Now the decimal, again I have 1, but the division is not completed. So what I will do? I will again put a 0. Again I can see 3 3s are 9, and when I subtract, I will get 1. Now again the decimal, again the remainder is 1, that is a non-zero number, so the division is not completed. So again I will put a 0 because I have a decimal here. Then again 3 3s are 9, so when I subtract, I will again get 1. Okay, I will again get 1. Now again I can see in the remainder there is a non-zero number, it means the division is still not completed. So I will again put a 0 and I will get 3 and 3 times and 9. So when I subtract, I will again get 1. So every time I am trying to conclude this division, but it is not getting concluded, it is continuing. Okay, हर बार मुझे रिमाइंडर में 1 1 1 1 आता दिखाई दे रहा है, रिमाइंडर में 0 आ ही नहीं रहा. ये 1 1 और फिर से यहाँ पर 1, फिर से 1, फिर से अगर मैं डिवाइड करूंगा फिर से 1 मिलेगा. So I can see that in this division I will continuously get 3 3 3 3 3 after this decimal. Okay, so I will say that this 1 upon 3 has the decimal expansion as 0.33333 and so on. It will continue till infinity. Okay, कितनी भी बार आप इसे डिवाइड कर लीजिए, ये हमेशा 3 ही आता रहेगा. तो हम कहेंगे कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये रुक ही नहीं रहा, ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है. नाउ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन में एक टर्म और जुड़ती है, दैट इज रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal expansion, it means after the decimal a particular number will going to repeat, or a particular group of numbers will going to repeat. As I can see in 1 upon 3, this 3 is continuously getting repeated. So I will say that this is a non-terminating because it is not getting stopped, and it's repeating because 3 is continuously getting repeated. तो हम कहेंगे कि इस तरह के डेसिमल एक्सपांशंस को, इस तरह के रेशनल नंबर्स को हम नॉर्मल जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशंस है उनके साथ नहीं रख सकते, इन्हें सेपरेट कैटेगरी में रखना पड़ेगा. जैसे कि ये 1 अपॉन 3. इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट अस से 1 अपॉन 7. 1 upon 7 को जब आप डिवाइड करेंगे, this is 1 and this is 7, so I will put a 0 and then decimal, this will be 0, 7 1s are 7 minus, you will get 3 as the remainder. Division complete नहीं हुआ, I will add a 0, then 7 4s are 28, when you subtract you will get 2, again the division is incomplete, I will add a 0, so 7 2s are 14, again the division is incomplete, I will get a 6. Now again I will add a 0. Okay, again I will add a 0, and if I add 0, this will be 7 8s are 56. Okay, I will get 4
in the remainder, again it's a non-zero, so I will add a 0. Then 7 5s are 35. Okay, again I will get 5 as the remainder, so again I will add a 0. So now 7 7s are 49, minus you will get again remainder as 1. Now if I get remainder 1, I will add a 0. So 7 1s are 7, you will get 7 and you will get remainder as 3. So just observe the remainders. First I got remainder as 3, second time I got remainder as 2, third time I get 6, then I get 4, then I get 5, then I get 1, and again I get 3. So the remainders that I am getting in this division are 3, 2, 6, 4, 5, then 1, then again 3. If I get 3, again I will get 2. So the remainders are like this: 3, 2, 6, 4, 5, 1, 3, 2, 6, 4, 5, 1, and so on. So like this, the remainders in this division are continuously getting repeated. So I will say that this division will never going to conclude, it will continue till infinity, and that's why I can see in the quotient also, this is the decimal, and after the decimal the numbers are 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, again you will get 4, 2, 8, 5, 7, again you will get same number. So I can say that in the decimal expansion of 1 by 7, it is 0.142857 bar. You have studied about this bar. What does this bar represent? It means the digits under this bar are those which are getting repeated. So all these digits, this group of digits is continuously repeated. So 142857, 142857, 142857, and it is getting continued. Okay. So it's again a non-terminating but repeating. So every rational number which you take, even if it is a non-terminating rational number, then definitely you will find that there is some numbers or group of numbers which is getting repeated. Okay, rational numbers की क्या खास बात है? पहले तरह का तो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशंस. सेकेंड कंडीशन क्या है? जो नॉन टर्मिनेटिंग है वह नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ रिपीटिंग जरूर होते हैं. ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई डेसिमल एक्सपांशन, कोई रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं हो रहा, हमेशा रिपीट होगा. फॉर एग्जांपल मैं 1/9 को लेता हूं. 1/9 इज 0.11111 एंड सो ऑन, इट विल कंटिन्यू. 1/6 is 0.166666 and so on, it will again continue. तो हम कहेंगे कि 1/9 ले लीजिए, 1/6 ले लीजिए, और एग्जाम्पल 17/13 ले लीजिए, या और भी कोई रैशनल नंबर ले लीजिए which is non terminating. You will find all the rational numbers which are non terminating will be definitely repeating. वह repeating होंगे ही. Okay? ऐसा नहीं होगा कि non terminating है और repeat भी नहीं हो रहे, repeat तो होंगे ही होंगे. Okay? It's a confirmation. So all these numbers, these are rational numbers, but these are non terminating. So what is the special thing about these non terminating rational numbers? The special condition that we can analyze is that in non terminating decimal expansions, in non-terminating decimal expansion, you will find that the denominator is never of the form 2 to the power n 5 to the power m. This is the most important thing. हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशंस के लिए क्या देखते हैं कि ये वह नंबर है जिनका डिनोमिनेटर 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता. अगर वह इस फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगेगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशंस में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसीलिए ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कभी भी नहीं कर सकता. इट मीन्स अगर कोई रैशनल नंबर मुझे दिख रहा है और उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म का नहीं है, तो बिना
उसे सॉल्व किए बिना डिवीजन परफॉर्म किए मैं कह सकता हूं कि हाँ ये नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। अगर वह इस फॉर्म में दिख गया, अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में दिख गया, तो हम कहेंगे कि नहीं ये टर्मिनेटिंग होगा। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट वी हैव अ थ्योरम इन एनसीईआरटी। लेट्स राइट द थ्योरम एंड अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। द थ्योरम इज very simple. It says let x is equals to p upon q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are non-negative integers. Where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion. Which is non-terminating repeating. Okay, repeating, that is recurring. So this is the simple definition. हमने कहा था कि terminating decimal expansions में क्या है, जो डिनोमिनेटर है वह इस फॉर्म का होना चाहिए 2 to the power n 5 to the power m। लेकिन अगर डिनोमिनेटर, अगर किसी रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर इस फॉर्म का एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम कहेंगे कि वह एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। वह एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग जरूर होगा। प्लीज बी वेरी केयरफुल, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग भी जुड़ना चाहिए। इट्स बिकॉज इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं उनमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की कंडीशन लगती है, तो इसीलिए आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि रैशनल नंबर्स में भी एक कैटेगरी आ गई जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, इर्रेशनल नंबर्स में भी एक कैटेगरी होती है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होती है। इसीलिए प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, सो हम कहेंगे कि ये थ्योरम जो कहना चाहती है, सिंपल लैंग्वेज में दिस थ्योरम सेज कि एक ऐसा रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म का नहीं है, वह डेफिनेटली उसका डेसिमल एक्सपांशन एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। ओके, फॉर एग्जांपल 1/7, 1/6, 1/9, 17/13, 1/3, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म का नहीं है तो डेफिनेटली वह एक नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। ओके, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस थ्योरम। इसका कोई स्पेशल प्रूफ अवेलेबल नहीं है, इट्स जस्ट लाइक एनालिसिस। आपको बहुत सारे नंबर्स लेकर उन पे एनालिसिस करना है और ये चेक करना है कि कौन सा नंबर किस रैशनल नंबर का एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है और किसका नहीं है, और फिर उसके बेसिस पे एक रिजल्ट बना दिया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थ्योरम एंड दिस इज ऑल अबाउट द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशंस, ओके, दैट आर रिपीटिंग। सो इसे नोट कर लीजिए प्लीज, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। टेक अ 1 minute break and then we will solve a question in which we will understand how to determine whether a number is a non-terminating or a terminating decimal expansion. Okay, so please note this. Okay, so based on the concept that we have studied about rational numbers, that is terminating and non-terminating, let us solve a question. The question says, without actually performing division, state which of the rational numbers are terminating and which are not. Okay, so what does this mean?
It means that there are some rational numbers given in front of you, and without actually dividing them, without actually dividing the numerator by the denominator, you need to identify which of the rational numbers are terminating, which have the terminating decimal expansion and which do not have. Okay, so how will we identify? ये चीज हम पता कैसे लगाएंगे? ये चीज पता लगाने के लिए हमें दो चीजों की ध्यान रखनी है, दो चीजों पे खास तौर पे ध्यान रखना है। दो कंडीशंस जो कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे वह है, सबसे पहला, न्यूमरेटर दैट इज P एंड Q शुड बी कोप्राइम। P और Q को कोप्राइम होना चाहिए, अगर वह कोप्राइम नहीं है तो उन्हें कोप्राइम में कन्वर्ट करना चाहिए। ओके, और सेकेंड कंडीशन, Q शुड बी इक्वल्स टू 2 to the power n into 5 to the power m। सो अगर मुझे किसी भी डेसिमल एक्सपांशन को, किसी भी रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन का ये पता लगाना है कि वह टर्मिनेटिंग है या फिर नहीं, तो मैं सिर्फ ये दो स्टेप्स यूज करूंगा। स्टेप 1 में मैं पहले ये चेक करूंगा कि P और Q दोनों ही कोप्राइम नंबर्स होने चाहिए, और स्टेप 2 में मैं ये चेक करूंगा कि Q 2 to the power n और 5 to the power m फॉर्म का होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस हो जाएंगी तो मैं कहूंगा कि हाँ, डेफिनेटली वह नंबर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन देगा। ओके, नाउ सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। I can see this is 13 upon 3125. Now what is 3125? 13 और 3125, 3125 एक कंपोजिट नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है। सो 13 को तो मैं प्राइम फैक्टराइज और कर ही नहीं सकता, तो फिर क्या करूंगा, हम 3125 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। सो लेट्स प्राइम फैक्टराइज 3125। 3125 5 से कैंसिल होगा, आपने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े हैं। ओके, 5 6 are 30, 5 2 are 10, 5 5 are 25. Then 5 times 5 1 are 5, 5 2 are 10, and 5 5 are 25. Then 5, this is 5 2 are 10, and 5 5 are 25. Then 5, this will give you 5 and 5, and this is 1. So 3125 को मैं लिख सकता हूँ 5 to the power 1 2 3 4 5. Okay, this 3125 can be written as 13 upon 5 to the power 5. 5 to the power 5. So now observe, are P and Q कोप्राइम नंबर्स? क्या P और Q कोप्राइम है? हम देख सकते हैं 13 है, ये 5 to the power 5 है। कोप्राइम मतलब सिर्फ ये चेक करना है कि HCF 1 है या नहीं, या फिर कहें कॉमन फैक्टर चेक कर लीजिए। इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर मुझे दिखाई नहीं देता। इट मीन्स मैं कहूंगा कि इनका HCF कितना है? 1। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह कितना है? 1। और 13 और 5 to the power 5 ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, इसे मैं और कैंसिल करके छोटा नहीं कर सकता। सो पहली कंडीशन तो फुलफिल होती है कि P और Q शुड बी कोप्राइम, ये दोनों कोप्राइम है। सेकेंड कंडीशन, Q इस फॉर्म का होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं Q कैसा है? Q इज 5 to the power 5। क्या मैं Q को इस तरह से लिख सकता हूं 2 to the power 0 into 5 to the power 5? ओके, मैं Q को लिख सकता हूं 2 to the power 0 into 5 to the power 5, बिकॉज 2 की पावर 0 मतलब 1। सो नाउ ऑब्जर्व दिस एंड ऑब्जर्व दिस। यू कैन सी जो इस क्वेश्चन में हमारा Q है, जो डिनोमिनेटर है, वो एग्जैक्टली इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, N आप देख सकते हैं 0 है, M आप देख सकते हैं 5 है। सो N और M दोनों ही कैसे हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। सो डेफिनेटली यह एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। ओके, जब मैं इसे डिवाइड करूंगा और इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, ये एक पॉइंट पे आके टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, आप चेक कर सकते हैं डिवीजन करके। नाउ मूविंग टू द सेकंड वन, 17 अपॉन 8। हम देख सकते हैं 17 और 8 दोनों में ही कोई भी कॉमन फैक्टर दिखाई नहीं देता। क्यों? बिकॉज 17 एक प्राइम नंबर है, 8 एक कंपोजिट नंबर है, और आप जानते हैं 8 को एक्सपांड करने पे, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे you will get 2 to the power 3. So in this case I have Q as 2 to the power 3,
Okay, I can write this q as 2 to the power 3 into 5 to the power 0. तो हमारा q इस फॉर्म में आ गया. ओके, हमारा p और q दोनों ही कोप्राइम नंबर्स हैं, तो डेफिनेटली यह एक्सप्रेशन भी डिवीजन करने पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन देगा. ओके, थर्ड वन इज 64 अपॉन 455. सो 64 को जब मैं प्राइम फैक्टराइज करूंगा, हाउ विल यू प्राइम फैक्टराइज 64? 64 is like this. Let us prime factorize it here. So this is 2, 32, then 2, 16, then 2, 8, then 2, 4, then 2, 2, and 2 and 1. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 64 को मैं लिख सकता हूं 2 to the power 6 upon now 455. अगेन 455 के लिए भी मैं कुछ इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा. 5 टाइम्स से कैंसिल होगा, सो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, देन 7 13 जा 91 and 13 1. So I can convert this denominator as 5 to the power 1 into 7 to the power 1 into 13 to the power 1. तो हम देख सकते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में थर्ड वाले रैशनल नंबर को हमने इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया. नाउ क्या हमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कोई कॉमन फैक्टर दिखाई देता है? नहीं, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर अवेलेबल नहीं है. ओके, तो P और Q कोप्राइम हो गए. P और Q कोप्राइम है, ये चीज हमने कंफर्म कर दी. नाउ फिर Q क्या इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? यहां पर हम देख सकते हैं Q में 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1 आ रहा है. तो हम कहेंगे that this Q which is 5 to the power 1, 7 to the power 1, 13 to the power 1 is not in the form of 2 to the power n, 5 to the power m. Q इस फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, Q इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता. अगर Q इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि यह रैशनल नंबर हमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन देगा. ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन नहीं दे सकता क्योंकि डिनोमिनेटर इस फॉर्म का होना चाहिए, लेकिन वह इस फॉर्म का नहीं है. यहाँ पे 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है. ओके, सो थर्ड वन इट विल नॉट गिव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. देन मूविंग टू द फोर्थ वन, दिस इज 15 एंड दिस इज 1600. हम देख सकते हैं ये 5 से कैंसिल हो जाएगा. सो लेट अस कैंसिल इट बाय 5. 5 3 जा 15. ओके, 5 this will be 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 and 0. So this is 3 upon 320. So 3 upon 320. Now ये दोनों कोप्राइम बन गए, P और Q कोप्राइम हो गए. हाँ, P और Q कोप्राइम हो गए. अब डिनोमिनेटर को चेक कर लेते हैं. डिनोमिनेटर है हमारा 320. So 2 से कैंसिल होगा, 2 16 and this is 0, then 2 8, this is 0, 2 4 times, this is 0, 2 2 times, this is 0, then 2 10 times, this is 0, and 2 5 times, and then 5 1 times. So this 320 is 2 2 2 2 2 and one more 2. So 6 times 2 and that is 5. Okay, 320 is 6 times 2. Is it 6 times? Yes, it is 6 times. Yes. Now 3 upon 320. How should I write this 3 upon 320? I can write this as 3 to the power 1 upon 2 to the power 6 into 5 to the power 1. So आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर किस फॉर्म में दिख रहा है, 2 to the power n, 5 to the power m. ओके, और P और Q दोनों ही कोप्राइम दिख रहे हैं. तो डेफिनेटली यह रैशनल नंबर हमें एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन देगा. ओके, देन मूविंग टू द फोर्थ वन. फोर्थ में देखते हैं, दिस इज 29. 29 एक प्राइम नंबर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे हम फैक्टराइज करेंगे ही नहीं. 343 फैक्टराइज हो जाएगा. ओके, नाउ व्हाट इज 343? 343 क्या होता है? 343 इज अ स्क्वायर ऑफ सम नंबर. विच नंबर? 343 is a square of a number. Now moving to 343, this 29 upon 343. 29 is a prime number, you know this is a prime number, so इसे decimal expansion इसका prime factorization करने की हमें जरूरत नहीं. 343 क्या है? 343 is the cube of 7. So I can write this expression as 29 upon
7 to the power 3. Okay, now you can see 29 and 7 to the power 3 both are co-prime numbers, तो पहली कंडीशन फुलफिल होती है. सेकेंड कंडीशन है q शुड बी ऑफ दिस फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m. क्या यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? नहीं, यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में 7 दिखाई दे रहा है. So it means that this will not give a terminating decimal expansion. Rather, it will give a non-terminating decimal expansion. Then moving to the sixth one, you can see sixth is already expressed in the simplest form. 23 is a prime number and the denominator is 2 to the power 3 5 to the power 2. So ये denominator इस फॉर्म का एग्जिस्ट कर रहा है और P और Q 23 और ये एक्सप्रेशन दोनों ही कैसे हैं? को प्राइम है. इनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है. ओके, HCF कितना है? 1. तो डायरेक्टली इसे देख के हम कह सकते हैं यस, इट विल गिव यू टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. ओके, नाउ मूविंग टू द सेवेंथ वन, it is 129 upon 2 to the power 2, 5 to the power 7 and 7 to the power 5. So for this question what we will do? We will try to factorize the numerator because denominator is already given in prime factorization form. So I will solve the numerator 129. It is 3 times 3 4 times and 3 3 and this is 43 and 1 because 43 is a prime number. So मैक्स टू मैक्स मैं इस 129 एक्सप्रेशन को 3 to the power 1 into 43 to the power 1 में लिख सकता हूँ और डिनोमिनेटर होगा 2 to the power 2, 5 to the power 7 and 7 to the power 5. So P और Q को प्राइम हैं, दिख रहे हैं, लेकिन डिनोमिनेटर को अगर हम देखें तो ये इस फॉर्म का होना चाहिए. इस फॉर्म में 7 नहीं आता, लेकिन यहाँ पर हमें 7 to the power 5 दिखाई दे रहा है. तो हम कहेंगे कि दिस विल नॉट गिव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. क्यों? बिकॉज इसका डिनोमिनेटर इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन. ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. देन मूविंग टू द एट्थ वन. एट्थ में क्या कर सकते हैं? आई कैन कैंसल दिस 3 2s and 3 5s 15. This will give you 3 upon 5. So now this 5 can be written as this 5 which is Q. It can be written as 2 to the power 0, 5 to the power 1. So ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और 3 और 5 कैसे हैं? को प्राइम नंबर्स हैं, तो डेफिनेटली ये वाला नंबर, ये वाला रैशनल नंबर हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन ही देगा. देन मूविंग टू द नाइन्थ वन, 35 अपॉन 50. इसे हम कैंसिल कर सकते हैं. 5 7s are 5 10s are. It will give you 7 upon 2 into 5. Now 7 and 10 are co-prime. 7 और 10 में HCF कितना है? सिर्फ और सिर्फ 1. और डिनोमिनेटर इस फॉर्म में भी दिखाई देता है, तो हम कहेंगे कि 7 upon 2 into 5 और 7 upon 10 will definitely give you a terminating decimal expansion. Okay. Now moving to the 10th one. This is 77. This is 210. मुझे दिख रहा है कि ये 7 से कैंसिल होगा. 7 11 times, 7 3s are and this is 0. So this will give you 11 upon 30. Now 30 को जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, it will give you 11 upon 2 to the power 1 into 3 to the power 1 into 5 to the power 1. So न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को प्राइम हो गए, लेकिन डिनोमिनेटर इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा. डिनोमिनेटर में एक 3 एक्स्ट्रा आ रहा है. तो फिर हम क्या कहेंगे कि दिस एक्सप्रेशन विल नॉट गिव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. So in all these examples, only first, second, third, fourth and fifth, only these 5 will give you terminating decimal expansion and rest will give you non-terminating but repeating decimal expansions. Okay, please be very careful. Non-terminating तो है लेकिन repeating भी जरूरी है. Okay, so this completes this question. हमने देखा कि किस तरह से हम सिर्फ इन दो कंडीशंस को यूज करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर टर्मिनेट होगा और कौन सा नहीं. ओके, खास बात, हमें बिना लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करे ये चीज पता चल गई. वरना सोचिए 13 upon 3125 इसको डिवीजन करके अगर हम सॉल्व करते तो ये कितना लंबा डिवीजन जाता. ओके, एंड इट विल बी डिफिकल्ट ऑल्सो, काफी ज्यादा परेशानी होती है उसे करने में. सो दिस मेथड इज वेरी गुड मेथड. ओके, सो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, देन वी विल कंटिन्यू.